अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वजीर KTR ने निजामाबाद में IT टावर का किया इफ्तिताह। करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का भी किया आगाज। जलसे आम से KTR ने किया खिताब। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सेक्रेटरीट के अहाते में ज़ेर तामीर मस्जिद के तामीरी कामों का किया मुआयना। 25 अगस्त को मस्जिद का होगा इफ्तिताह। सेलफोन्स का बदनाम जमाना सारक गिरफ्तार। 563 मोबाइल फोन्स व दीगर अशिया जुमला मालियती 1 करोड़ 92 लाख रुपये किए गए बरामद। साइबराबाद पुलिस की कार्रवाई। 4 व्हीलर्स के सरख में मुलविस बैन रियासती टोली गिरफ्तार। 11 व्हीकल्स मालियती 3 करोड़ 30 लाख रुपये किए गए जब्त। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने निज़ामाबाद में 50 करोड़ की लागत से कायम किए जाने वाले IT टावर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा KTR ने हाल ही में मुनक़िद जॉब मेले के तहत मुंतखबा नौजवानों में तक़र्रुरनामे भी तक़सीम किए। बाद अज़ा उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैदराबाद के अलावा अज़ला में भी IT हब कायम करते हुए मुकामी नौजवानों को मुलाजिमतें फ़राहम कर रहे हैं। वज़ीर बल्दी नक़्मुनक़ से KT रामाराव ने निज़ामाबाद में मिनी टैंक बॉन्ड के बशमूल करोड़ों रुपयों के दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी अमल में लाया। इस मौके पर वज़ीर इमारत व शुआरा प्रशांत रेड्डी, BRS अरकान असम्बली शकील आमिर, जीवन रेड्डी, गणेश गुप्ता, G गोवर्धन रेड्डी के अलावा सेक्रेटरी महकूम सनत GS रंजन भी मौजूद थे। తెల్లారి లేస్తే చిల్లర మాటలు, చిల్లర పంచాయతీలు. తెల్లారి లేస్తే మాట్లాడేది ఏంది? హిందువులు ముస్లింలు, ఇది తప్ప ఇంకోటి రాదు. మతాల మధ్యన పంచాయతీ పెట్టే పిచ్చి మాటలు తప్ప ఒక్క మంచి మాట. ఇవాళ నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఇన్ని 100 కోట్ల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతుంటే పార్లమెంట్ సభ్యునికి చిత్తశుద్ధి ఉంటే రాడా? వచ్చి మాతో పాటు నిలబడడా? ఎందుకు ముఖం లేదా? నయా పైసా పని చేయలేదు కాబట్టి, నీ మోడీ బోడీ ఒక్క పైసా కూడా ఇయ్యలేదు కాబట్టే ఇలా వచ్చేటందుకు ముఖం లేక ముఖం చాటేసి మళ్ళీ దానికి తొంపులు పెట్టి నేను ఇందుకు వస్తలేను గందుకు వస్తలేను అని చెప్పి అడ్డమైన మాటలు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, IT హబ్ అభివృద్ధి కాదా? NAC సెంటర్ అభివృద్ధి కాదా? మినీ ట్యాంక్ బండ్ చేస్తే అభివృద్ధి కాదా? అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ నిర్మాణం చేస్తే అభివృద్ధి కాదా? 100 కోట్ల రూపాయలతో బ్రహ్మాండంగా మంచినీళ్ళు ఇస్తుంటే అభివృద్ధి కాదా? वज़ीर इमारत व शुआरा प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि अपोजिशन गृह लक्ष्मी स्कीम के खिलाफ गुमराह कुन तशहीर कर रही है, जबकि ये स्कीम साफ और शफाफ तौर पर अमल में लाई जा रही है। इस स्कीम के तहत जिस किसी के पास 200 गज़ या उससे कम अराजी मौजूद हो, वो अपने अपने अज़ला के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास दरख्वास्त दाखिल करते हुए 3 लाख रुपये हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि ये स्कीम 1 अगस्त से रियासत भर में कामयाबी के साथ शुरू कर दी गई है, लेकिन अपोजिशन कायदीन अपनी सियासी बका और मीडिया में बरकरार रहने के लिए हुकूमत पर झूठे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। ఒక డౌట్ ఉంది, అది ప్రభుత్వం తెలుసు. గ్రామ కంఠంలో ఉన్నటువంటి పాత ఇండ్లకు ఆ ఇంటి నంబర్ ఇస్తే చాలు, ఇంటి నంబర్ రాస్తే చాలు. ఆ పాత ఇంటి ఇల్లు పక్కన ఖాళీ స్థలం ఉంటే దానికి పేపర్ లెక్కలేదు. ఏ ఇంటికి ఖాళీ స్థలం ఉంటే చాలు, దాని పక్కన బౌండరీస్, ఆ ఖాళీ స్థలం పక్కన ఈ ఇల్లు నంబర్ ఉంది, ఈ ఇల్లు నంబర్ ఉంది, ఇల్లు నంబర్ ఉందని అప్లికేషన్లో రాస్తే చాలు. ఆ ఖాళీ స్థలాన్ని పంచాయత్ సెక్రటరీ వచ్చి వెరిఫై చేసుకుంటారు. అంతే, వాళ్ళు ఏం పేపర్లు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి గ్రామకంఠంలో ఉన్న పేదలు ఎవరు కూడా ఆందోళన చేయాల్సిన అవసరం లేదు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా క్లియర్గా ఇండ్లు లేని పేదలు ఎవరికైతే ఖాళీ స్థలం ఉంటుందో వారి ఇల్లు కట్టుకుంటానంటే వారికి 3 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేసేదే గృహలక్ష్మి పథకం. ఇది ఒక రోజుతో ఆగిపోయేది కాదు, ఇది నిరంతర ప్రక్రియ. మొదటి దశలో 3000 ఇండ్లు నియోజకవర్గానికి తీసుకున్నాం. ఈ 3000 ఇండ్లు ప్రతి నియోజకవర్గానికి అలాట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ ఫేజ్లో మళ్ళీ వస్తాయి, మళ్ళీ ఇండ్లు వస్తాయి. నిరంతర ప్రక్రియ, ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు.
మీరు మీ అప్లికేషన్లు మీ ఎంపీటీసీల ద్వారా, మీ సర్పంచుల ద్వారా, మీ ఎంపీపీల ద్వారా, మీ జడ్పీటీసీల ద్వారా జిల్లా కలెక్టర్ వారికి అందజేయవచ్చును. మీ స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా సరే స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులకు మీరు అప్లికేషన్ ఇచ్చి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి మీరు అందజేయవచ్చును. దాంట్లో ఏమి ఇబ్బంది లేదు. జిల్లా కలెక్టరేట్లో ఒక कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सेक्रेटरीट में जारी मसाजिद के तामीरी काम का मुआयना किया। कायदे मजलिस की मुसलसिल कोशिशों से मस्जिद के कामों में पेशरफ्त हुई है और 25 अगस्त को हुकूमत ने मस्जिद के इफ्तिताह की तारीख मुकर्रर की है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद के तामीरी काम से जुड़े ओहदेदारों से भी मुलाकात की, जबकि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी निगरानी में मस्जिद की तामीर का नक्शा तैयार करवाया था और इसी नक्शे के मुताबिक मस्जिद की तामीर अमल में लाई जा रही है। वज़ीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रेवंत रेड्डी को दूसरे पर इल्ज़ाम आयद करने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जगदीश रेड्डी ने बताया कि रेवंत रेड्डी का जिन दोनों पार्टियों से ताल्लुक़ था और है, वो दोनों जमातें तेलुगु देशम और कांग्रेस ने अपने दौर इक़्तिदार में गोदावरी नदी के पानी से तेलंगाना की आवाम को महरूम रखा था। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है। किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत फ़ी एकड़ 10,000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के तहत लाखों लड़कियों की शादी के लिए रकम भी फराहम की गई। मीडिया हौसला యజమానుల అండతోని ఇక నేను ఏం మాట్లాడినా రాస్తున్నారు, ఏం మాట్లాడి చూపిస్తున్నారు, సంబూరంలో ఎగురుతున్నట్టున్నావు. ఇది మంచిది కాదు. वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात का जवाब देते हुए बताया कि आवाम ये बात अच्छी तरह जानती है कि कौन बदउनवान है, क्योंकि रेवंत रेड्डी नोट बराए वोट वाले मामले में जेल भी जा चुके हैं और उन पर इस सिलसिले में ताहाल मुकदमा जारी है। वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में गुज़िश्ता 9 साल के दौरान किए गए से रियासत की आवाम मुतमईन है और आवाम बीआरएस को तीसरी मरतबा इख्तिदार पर फायज करेगी। ప్రజలు సమాజము విఘ్నత కలిగి ఉంటుందన్న స్పృహతో మాట్లాడారు రాజకీయ నాయకులు. ఎవరు మాట్లాడినా ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఇక మాకంటే గొప్పగా ఎవరికి తెలియదు, లేకుంటే మేము మాట్లాడితే చెల్లుబాటు అవుతుంది అనుకుంటే అవాస్ పాలవుతాం. ప్రజా సమూహంలో సమాజంలో చాలా మంది విఘ్నులు, మనకంటే తెలివైన వాళ్ళు, మనకు మించినటువంటి వాళ్ళు, అనేక రకాలుగా మించిన వాళ్ళు ఉంటారు. ప్రతి అంశాన్ని కూడా దృష్టితో చూస్తుంటారు, వాళ్ళు పరిశీలిస్తుంటారు. మనలా మహిళగాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు మాట్లాడకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళ అభిప్రాయం వాళ్ళకి ఉంటుంది. అదే సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఓటు రూపంలో కొట్టి చూపిస్తారు జనం. साबिक बीजेपी रुकन असम्बली एनवीएस प्रभाकर ने बताया कि बीआरएस और एमआईएम ने मिलकर असम्बली पर कब्जा करते हुए आवाम को फिर एक मरतबा धोखा देने के लिए एक दूसरे की सताइश की और न सिर्फ ऐवान का वक्त ज़ाया किया, बल्कि आवाम को दोनों जमातें आने वाले असम्बली इंतखाबात में फिर एक मरतबा धोखा देते हुए इख्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बीजेपी आवाम की तायद से उनके मंसूबों को नाकाम बना देगी। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि 9 साल के दौरान अब तक कितने अफराद को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए गए हैं, इसकी वजाहत करें।
कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की निगरानी में ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के तहत असरा हॉस्पिटल में ज़चगियों के लिए खुसूसी रियायत दी जा रही है। हॉस्पिटल की अमराज़ ख़वातीन की माहिर डॉक्टर आयशा जहां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हॉस्पिटल के MD अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हॉस्पिटल में ज़चगियों के लिए रियायत दी जा रही है, जहाँ नॉर्मल डिलीवरी मुफ्त में की जा रही है, जबकि ऑपरेशन के लिए सिर्फ 6,000 रुपये लिए जा रहे हैं। डॉक्टर आयशा जहां ने बताया कि ऑपरेशन की फ़ीस में अद्वियात भी शामिल हैं और गुज़िश्ता 15 दिनों से इस सहूलत से कई ख़वातीन इस्तेफ़ादा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि असरा हॉस्पिटल में तमाम तरह के मुआयने वाजिबी कीमत पर किए जा रहे हैं। डॉक्टर ने यह भी बताया कि ऐन वक्त पर आने वाली ख़वातीन को ICU में दाखिल कराना पड़ता है। इस मौके पर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति और कहकशा अंजुम ने भी मीडिया से बात की। BRS कबायली शोबे से वाबस्ता कारकुनों ने BJP के हेडक्वार्टर का घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। ST फहरिस्त से लंबाड़े तबके को निकाले जाने के BJP के MP साइम S बाबूराव के रिमार्क के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। कबायली तंजीम के कारकुन BJP MP के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और BJP से उन्हें बरतरफ करने का मुतालबा किया जा रहा था। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के नामपल्ली के मल्लेपल्ली बल्दी डिवीज़न में मजलिसी कायदीन सरगर्म है। चारशंबे को नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र खान ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल की समाअत की। फ़ानी ग्राउंड, इत्तेहाद ग्राउंड और आसपास के इलाकों का उन्होंने दौरा किया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र खान ने बताया कि रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज से अवामी मसाइल को वाकिफ़ करवाते हुए उन मसाइल की यकसोई की जाएगी। सोसाइटी भी जो है फुटबॉल ग्राउंड में देखे आता है TNGOs ने वक्फ बोर्ड की तरफ से मुलाजमीन की सबदोशी की हद उम्र के अहकाम पर पाबंदी ना करने के खिलाफ एहतजाज किया है। TNGO के हैदराबाद सदर हुसैनी मुजीब ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने GO 45 जारी करते हुए मुलाजमीन की उम्र को 61 साल किया था, ताहम वक्फ बोर्ड की तरफ से 60 साल सबदोशी की उम्र रखी गई है। हुसैनी मुजीब ने वक्फ बोर्ड के सदर नशीन और CEO से इस मौके पर संजीदा गौर करने का मुतालबा किया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से रखी गई है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में तेलंगाना NGOs यूनियन वक्फ बोर्ड के सदर जनाब इब्राहिम साहब, जो हमारे सदर है वहाँ के, पिछले हफ्ते 31 तारीख के दिन उनको रिटायरमेंट करार दिया गया वक्फ बोर्ड से। हमारे हरदिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब, कोपुला ईश्वर साहब, महमूद अली साहब और तेलंगाना NGOs सेंट्रल यूनियन के सदर जनाब राजेंद्र साहब, हमारी रिक्वेस्ट पर हुकूमत जो सरकारी मुलाजिमीन की रिटायरमेंट की एज थी 58 साल, उसको GO नंबर 45 के ज़रिए से 31 मार्च 2021 में चीफ मिनिस्टर साहब 3 साल बढ़ाकर 61 साल रिटायरमेंट की एज किए थे।
इसमें तमाम सरकारी मुलाजिमीन जितने महकमे तेलंगाना के रियासत में हैं, जितने कॉरपोरेशंस है, जितने बोर्ड्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, लाइब्रेरीज है, तमाम लोग ये जियो का खैर मकदम करें और ये जियो को एडॉप्ट कर उनके जो भी महकमे है उसमें 61 साल रिटायरमेंट की एज रखे। तो हम तमाम लोग भी चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया भी अदा किए। लेकिन हैदराबाद में आज तलबा तंजीम AISF के चलो सेक्रेटरीट एहतजाज के दौरान पुलिस अहदेदार की तरफ से एक शख्स को तमाचा रसीद किए जाने का वीडियो मंजर आम पर आया है। AISF के कारकुन ज़ेर इल्तिबा स्कॉलरशिप्स की इजराई स्कूल और कॉलेजेस में मौसर बुनियादी सहूलतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। बताया गया कि सेंट्रल जोन के DCP वेंकटेश्वर राव की तरफ से एक कारकुन को मुबैना तौर पर तमाचा रसीद किया गया। पुलिस ने इस मौके पर कई कारकुनों को हिरासत में लिया, जबकि AISF के कारकुनों ने पुलिस के रवैये पर बरहमी जाहिर की। అసలు ఏమనుకుంటారో సార్ మరి ఇంత वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर गांजे की मुंतकिली को नाकाम बनाते हुए बैन रियासती गांजा ट्रांसपोर्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मशरक़ी गोदावरी के मुतवत्तियान लावा राजू और अजय कुमार को लंगर हाउस के इलाके में गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से 16 किलो गांजा जब्त हुआ है। DCP टास्क फोर्स राधा कृष्णा राव की क़यादत में इंस्पेक्टर खलील पाशा, वेस्ट जोन टास्क फोर्स और उनके साथियों ने ये दावा किया। बताया गया है कि 2500 रुपये फ़ी किलो गांजा खरीद कर इसे हैदराबाद में फरोख्त के लिए लाया गया था। जियागुड़े में पेशे से वीडियोग्राफर 25 साल एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की शिनाख्त प्रवीण की हैसियत से की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। माली मसाइल खुदकुशी की वजह बताई जा रही हैं, जबकि पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने सहाफ़त की दुनिया की मुमताज़ व ख़दावर शख्सियत जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ान मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत के साने इर्तिहाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया और लवाहिकीन व इदारे सियासत से वाबस्तगान से ताज़ियत की है। मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी की दस्तखत से जारी बयान में मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी
साबरी, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही व दीगर ज़िम्मेदारान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि जनाब ज़हीरुद्दीन अली ख़ां मैदान सहाफ़त के एक दरख्शंदा सितारे थे, एक खामोश तबात शख्सियत और अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे। मिली काज के लिए हमेशा सरगर्म रहते थे। मिली मसाइल पर हमेशा फ़िक्रमंद होने के साथ उनकी यकसोई के लिए भी कोशां रहते थे। वो इदारे सियासत के मिली और फलाही कामों में रूह रवां थे। उनके इस दुनिया से रुखसत हो जाने से एक खला पैदा हो गया। मिल्लत के लिए उनकी खिदमत ता देर याद रखी जाएंगी। एसओटी राजेंद्र नगर और मलारदेवपल्ली पुलिस ने एक बैन रियासती टोली को हिरासत में लिया जो 4 व्हीलर्स के सरखे में मुलविस पाई गई। कमिश्नर पुलिस सहबाराबाद स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि टोली के 7 अराकीन को हिरासत में लिया गया है जबकि 8 मुलजिमीन फरार हैं। टोली के कब्जे से 11 सरखाशुदा गाड़ियाँ, दीगर अशिया जुमला मालियती 3 करोड़ 30 लाख रुपए बरामद किए गए। मुलजिमीन में तेलंगाना के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मगरबी बंगाल के मुलजिमीन भी शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस सहबाराबाद स्टीफन रविंद्रा IPS ने सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई। గ్యాంగ్స్ ని పట్టుకోవడం జరిగింది। టోటల్ ఒక 10 మెంబర్స్ ని అరెస్ట్ చేశాము। ఇందులోని 11 4 వీలర్స్, 27 2 వీలర్స్ అండ్ 1 ఆటో అన్ని కలిపి అబౌట్ 39 వెహికల్స్ వరకు సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ అక్యూజ్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ, ఢిల్లీ, హర్యానా అండ్ వికారాబాద్। వీళ్ళందరూ ఇప్పటి వరకు 35 క్రిమినల్ కేసెస్ వరకు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు అండ్ టోటల్ వర్త్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ దట్ వాజ్ సీజ్డ్ వాజ్ అబౌట్ 3.5 crores। ఇందులో ఈ కేస్ వివరాల్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ కేస్ మనకి ఎస్ఓటి రాజేంద్ర నగర్ మనకి ఈ కేసు చేయడం జరిగింది। ఈ కేసులో మనకి एसओटी माधोपुर जोन और रायदुर्गम पुलिस ने फ़ोन चोरी के एक बड़े रैकेट को बेनकाब किया और उसमें मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया जबकि उसके कब्जे से 563 मोबाइल फ़ोन्स, नगद रकम व दीगर अशिया जुमला मालियती 1 करोड़ 92 लाख रुपए बरामद किए। मुलजिम की शिनाख्त 54 साला जी रमन जी की हैसियत से की गई है जो LB नगर का साकिन और कड़पा आंध्र प्रदेश का मुतवत्तिन बताया गया है। मुलजिम को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो मुख्तलिफ कंपनियों के मोबाइल फ़ोन्स फ़रोख्त करने की गर्ज से शॉप्स पर पहुंचा था। काबिल अजीम मुलजिम से फ़ोन्स ख़रीदने वाले अफराद मफरूर बताए गए हैं। DCP माधोपुर जोन ने सिलसिले में तफसील बताई। 563 స్మార్ట్ ఫోన్స్ కోడింగ్ చేస్తున్న ఫ్రెండ్ అని పట్టుకున్నాము। ఇతని డీటెయిల్స్ ఏంటంటే ఇతను వచ్చేసి రామంజీ అని కడప అతను నేటివ్, కాకపోతే ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాడు LB నగర్ ప్లేస్లో। ఇంతకు ముందు కూడా 2016లో షామీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక FIR అయింది। ఇతను ఒక 6 years RTCలో కండక్టర్ లాగా పనిచేశాడు। దాని తర్వాత 2006 నుంచి 16 వరకు రియల్ ఎస్టేట్ చేశాడు। 16 నుంచి ఇదే అఫెన్స్ చేస్తున్నాడు। ఇతను ఏం చేస్తాడంటే ఎవరైతే మొబైల్ స్నాచర్స్ ఉంటారో వేరే స్టేట్లో దొంగతనం చేసిన మొబైల్ ఫోన్స్ అన్నీ కూడా ఇతను రిసీవ్ చేసుకొని IMEI అనేది ఒక చేంజ్ చేసి వేరే వాళ్ళకి అమ్ముతుంటాడు। అంటే ఏదైతే అఫోర్డబిలిటీ లేదో కొంతమంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉంటాయి కదా, షోరూంలో కొనుక్కోకుండా కొంతమంది ఏదైతే చీప్లు వస్తాయని కొంటుంటారో అలాంటి వాళ్ళకి అమ్ముతూ ఉంటాడు। నిన్న అరౌండ్ 5 o'clock in the morning మన SOT టీమ్స్ అండ్ రాయదుర్గం పోలీస్ వాళ్ళు అందరూ కూడా ప్లాన్ ప్రకారం హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకొని రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో అతను ఒక క్రీటా కార్లో వస్తుంటే పట్టుకోవడం జరిగింది। అంటే ఫస్ట్ కార్ చెక్ చేసినప్పుడు అతని దగ్గర 563 స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నట్టు తెలిసింది। ఫర్దర్ ఇంట్రాగేషన్లో ఇతను వచ్చేసి ఆకాష్, సన్నీ, వంశీ వీళ్ళు ముగ్గురు దగ్గర నుంచి మొబైల్ ఫోన్ తీసుకుంటాడు। వీళ్ళందరూ కూడా ముగ్గురు సప్లయర్స్। गच्चीबौली पुलिस ने कोंडापुर में वाक़ पब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जहां पर बाउंसर्स ने एक नौजवान की पिटाई करते हुए उसे शदीद ज़द-ओ-कोब किया। मुतासरा नौजवान ने इस वाक़े के बाद गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई। नौजवान ने इल्ज़ाम लगाया कि बाउंसर्स और सिक्योरिटी अमले ने पब में छोड़ने के लिए रकम का मुतालबा किया था।
బి మాల్లో ఎయిర్ లైఫ్ పబ్ దగ్గర ఒక చిన్న గొడవ జరిగిందని మనకు కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది ఈరోజు మార్నింగ్. దాన్ని మొత్తం ఎంక్వైరీ చేయగా రాత్రి 11:30 టైంలో ఈ పబ్లో తాగేసి వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి పబ్లోకి వెళ్ళటానికి ఎంట్రీ ఇవ్వమని చెప్పేసి బౌన్సర్స్ తోటి ఆర్గ్యుమెంట్ చేయడం జరిగింది. అదే సమయంలో వీళ్ళు అతనికి ఏదో డబ్బులు ఇచ్చి వెళ్తాము అది అని చెప్పేసి డబ్బులు తీశారు. వాళ్ళు వద్దు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒకరినొకరు తోసుకోవడం జరిగింది. అదే క్రమంలో ఒకరినొకరు కొట్టుకున్నారు. ఈ బౌన్సర్స్ అంతా కలిసి వాళ్ళని కొట్టడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో ఆ ఫోన్ కూడా మొత్తం పలిగిపోయింది. సో ఆ ఇష్యూలో మనకు కంప్లైంట్ రాగానే వాళ్ళ మీద ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కేసు రిజిస్టర్ చేసినాము. అవన్నీ కూడా సీసీటీవీ వెరిఫై చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ఏదైతే ఈ ఇన్సిడెంట్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఉన్నాయో ఈ ఎవరైతే కొట్టినారో వాళ్ళ మీద కఠినంగా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అది పబ్ నిర్వాహకులు కావచ్చు, వాళ్ళు బౌన్సర్స్ కావచ్చు, ఏదైతే చట్టాన్ని చేతులు తీసుకొని ఎవరైతే ఈ కొట్టడం జరుగుతుందో వాళ్ళ మీద తప్పకుండా కఠిన చర్యలు ఉంటాయని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా అందరికీ చెప్తున్నాను. चारमीनार पुलिस की जानिब से अग्रवाल कॉलेज में एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। डीसीपी साउजोन साई चैतन्या और एसीपी चारमीनार डिवीज़न ने इस प्रोग्राम में मेहमानान के तौर पर शिरकत की और तलबा से खिताब किया। इंस्पेक्टर चारमीनार पुलिस स्टेशन के चंद्रशेखर के मुताबिक तलबा में ड्रग्स के नुकसानात और इससे फैलने वाली बुराइयों से भी वाकिफ करवाया गया है। श्री साई चैतन्य जी का अभिनंदन करें। मैं सभा में उपस्थित अग्रवाल शिक्षा समिति की इंस्टीट्यूशंस की हेड सीसीएस बालानगर और जिलमिटला पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 व्हीलर्स और ऑटो का सरखा करने वाली 3 रुकनी टोली को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 27 मोटरसाइकिल और एक ऑटो व दीगर अशिया जुमला मालियती 22,20,000 रुपये बरामद किए। पुलिस के मुताबिक तीनों मुलजिमीन का ताल्लुक़ ज़िले विकाराबाद से बताया गया है। मुलजिमीन जुमला 26 केसेस में मुलव्विस पाए गए हैं। एसओटी एलबी नगर जोन और एलबी नगर जोन टीम ने वनस्लीपुरम पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए 2 रहजनों को हिरासत में लिया और रहजन शुदा तिलाई चेन के अलावा दीगर अशिया बरामद की। कमिश्नर पुलिस DS चौहान ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। अलावाजी एसओटी महेश्वरम जोन टीम और आदि बटला पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में ड्रग्स की मुंतकली के रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया। मुलजिम के कब्जे से 10 लाख रुपये मालियती ड्रग्स व दीगर अशिया भी बरामद की गई। कमिश्नर पुलिस DS चौहान ने मीडिया को इस सिलसिले में भी तफसील बताई। చైన్ స్నాచింగ్ మీద కంటిన్యూస్గా వరుసగా మనం ఒత్తిడి మరియు ఎక్కడైనా ఉంటే చైన్ స్నాచింగ్ 24 అవర్స్లో డిటెక్ట్ అయిపోవాలనేది ఆ ఒక దృక్పథంతో ఆ ఒక పట్టుదలతో రాజగుండ పోలీస్ వెళ్తా ఉన్నారు. చాలాసార్లు ఇంతకుముందు షేర్ చేశాము. కానీ అదే మీ అందరి ద్వారా పబ్లిక్కి తెలియపరచడానికి మరియు పబ్లిక్కి నమ్మకానికి నిలబెట్టడానికి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయడానికి నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. దట్ నిన్న ఒక చైన్ స్నాచింగ్ జరిగింది. దాన్ని మన వాళ్ళు 2 అవర్స్లో పట్టుకున్నారు. 2 అవర్స్ ప్రాబ్లీ ఫస్ట్ టైం ఇది. సో దాంట్లో శరత్ జాన్సన్ అతను 31 సంవత్సరం మరియు విజయ్ సాయి 32 సంవత్సరం. అక్కడ వనస్థలిపురంలో ఒక చోట్లో ఒక అమ్మాయి వెళ్తూ ఉండే వెనకాల నుంచి వాళ్ళు ఇది హీరో హోండా యాక్టివాలో వచ్చేసి చైన్ కాపుకొని వెళ్ళారు. ఆ విషయంలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే ఆ అమ్మాయి విదిన్ 5 minutes ఆ అమ్మాయికి నేను ప్రశంసిస్తున్నాము. అండ్ వారు పోలీస్ మీద పెట్టిన నమ్మకాన్ని కూడా నేను గౌరవిస్తాను. దట్ విదిన్ 5 minutes ఆమె డయల్ 100కి కాల్ చేసింది.
6th మినిట్ డైరెక్ట్ 100 కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉన్నాయి ఉంటే డైరెక్ట్ నాకు కాల్ చేస్తారు. ఇమీడియట్ గా విదిన్ 10 మినిట్స్ లో మనము అందరికీ అలర్ట్ చేయడం జరిగింది, వైద్య చెకింగ్ పెట్టడం జరిగింది. అటు ఏఎస్ఓటి గంగంలోకి దిగి విదిన్ 2 అవర్స్ 8:21 కి ఇన్సిడెంట్ జరిగితే 10:30 వరకు మనకు ఆల్రెడీ ఇన్నర్ అక్యూజ్ అండ్ ప్రాపర్టీ కూడా దొరికింది. ఈ విషయం మీ అందరికీ మేము చెప్పడానికి చాలా సంతోషిస్తున్నాము. దాంట్లో ముఖ్యమైన చివరికి ఒక జేమ్స్ నుంచి అయినప్పటికీ కూడా మాదక ద్రవ్యాల మీద ఒక పకడల మీద వ్యూహాత్మకంగా వారు ఎన్ని మార్చినా కంటిన్యూస్గా మనకు దాని మీద ఒక పట్టుదలతో మనం ఒక డ్రైవ్లో వేగా ఉన్నాము. అదే భాగంలో ఈసారి मारूफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद उम्रे की सादत हासिल करने की गर्ज से 10 अगस्त को सऊदी अरब रवाना होंगे। अपने सऊदी अरब दौरे के दौरान वो मुख्तलिफ शहरों जिद्दा, रियाद, दमाम, ताइफ का भी खुसूसी तौर पर दौरा करेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद वहाँ के तालीमी इदारों और तंजीमों की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले प्रोग्राम्स में लेक्चर भी देंगे और अपनी किताबों की रस्मी इजराई का भी अहतमाम करेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद 26 अगस्त को हैदराबाद वापस होंगे। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में खेले गए WPCS जिद्दा क्रिकेट टूर्नामेंट को आरकोमा सीसी ने जीत लिया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आरकोमा सीसी और ब्लैक हॉक्स के दरमियान खेला गया, जिसमें आरकोमा सीसी ने 36 रन से शानदार कामयाबी हासिल की। कैप्टन रफ़ीउल्लाह और वाइस कैप्टन सैयद शरीफ ने इस जीत पर सारी टीम को मुबारकबाद दी और शुक्रिया भी अदा किया। फातेह टीम के इब्राहिम नहदी ने 37 गेंदों में 63 रन बनाए, जबकि मोहम्मद आबिद ने 49 और बदरुद्दीन ने 38 रनों की बारी खेली। मजमूई स्कोर 186 के जवाब में ब्लैक हॉक्स सीसी 150 रन ही बना सकी। तहम मोहम्मद आलिम का शानदार मुजाहरा रहा, जिन्होंने 4 विकेट लिए। आरकोमा सीसी की इस फतेह पर कनाडा से इवेंट मैनेजर समर खान ने भी मुबारकबाद दी और कामयाबी पर मसरत का इजहार किया। नई दिल्ली के चांदनी चौक हल्के असम्बली में कांग्रेस ने टाउन हॉल घंटाघर के करीब अगस्त क्रांति दिवस प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसकी सदारत दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर चौधरी अनिल कुमार ने की। प्रोग्राम में अंसार अहमद, इसाक भाई चौधरी, मतीन अहमद, नील भरद्वाज, मुद्दत अग्रवाल, राजेश जैन, साबिक रुकन असम्बली अलका लांबा, किशन मुरारी, ठाकुर दास, रामलाल बंसल और दीगर ने शिरकत की। मिर्जा जावेद अली ज़िले सदर ने अपने खिताब में बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और यकीन ज़ाहिर किया कि आने वाले लोकसभा के इंतखाबात में कांग्रेस भारी अक्सरियत से जीतेगी और मरकज़ में हुकूमत भी बनाएगी। जबकि अलका लांबा साबिक रुकन असम्बली ने कहा कि मोदी हुकूमत ने 9 सालों में मुल्क को कर्ज में डुबो दिया और ये मोदी सरकार गरीब परवरी की बजाय अपने अमीर दोस्तों के लिए काम कर रही है। काम के लिए, इस देश के लिए सेवा और भावना के साथ काम करती है, धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ काम करती है। उसके एक एक कार्यकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि आजादी की पहरेदारी हम सब की हो। ये देश हर जगह तरक्की करे और गरीब आदमी का कोई घर ना जले, इसके लिए काम करें। जय हिंद। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर KTR ने निजामाबाद में IT टावर का किया इफ्तिताह। करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का भी किया आगाज। जलसे आम से KTR ने किया खिताब। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने सेक्रेटरीट के अहाते में ज़ेर तामीर मस्जिद के तामीरी कामों का किया मुआयना। 25 अगस्त को मस्जिद का होगा इफ्तिताह। सेलफोन्स का बदनाम जमाना सारिक गिरफ्तार। 563 मोबाइल फोन्स व दीगर अशिया जुमला मालियती 1,92 लाख रुपये किए गए बरामद। साइबराबाद पुलिस की कार्रवाई। 4 व्हीलर्स के सरख में मुलविस बैन रियासती टोली गिरफ्तार। 11 व्हीकल्स मालियती 3,30 लाख रुपये किए गए जब्त। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।